Hello, what is up? How's everybody? Can you guys hear me? I know you cannot unmute. We'll communicate through the chat box because I don't want to hear आपके घर में क्या बातें चल रही है. Because there's always one person जो unmute करके छोड़ देता है device and then. So guys, I just want to understand before we start off, what's the crowd like? English, Hindi, what do you prefer, or both is fine? I think there's a way to do a poll also, no? In the chats. I don't know, man. I think there's a way to do poll. I don't know. I'm really bad at Zoom. So guys, before I start talking some sense, I would really request everybody कि please एक notepad और pen रखो यार अपने पास because I'm really about to share everything that I possibly can with you. मैंने सोचा था कि यार I'll be very honest with you यार. I prepared a full script and all for webinar, but I thought let's keep it unscripted. Let me actually understand कि आप लोग क्या problems face कर रहे हो and let me solve that right there and then. तभी मजा आएगा आई थिंक. अदरवाइज आई कैन सिट हियर एंड जस्ट स्पीक व्हाटएवर आई हैव टू स्पीक, बट अगर उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो पॉइंट नहीं है. इट वुड बी रियली ग्रेट इफ you can switch on your videos so that I will feel I'm talking to some people. Otherwise ऐसा लगेगा कि यार मैं खुद से बात कर रहा हूँ. हाय अभिषेक, हाय साई चरण, हाय यश, हाउ यू ब्रो? हाय आईफोन, आई डोंट नो योर नेम ब्रो. हाय विजय, गुड टू सी ऑल ऑफ यू. सर्वेश, पीयूष, गुड टू सी यू अगेन ब्रो. कैसे हो? Those who don't have camera, not in a situation to turn on video, no problem guys. बस वही है कि मतलब I also need to see some people, right? Okay, so number one thing before anything. So guys, there's a quote, there's a saying. I hope everybody is settled. I hope everybody is ready to make the most out of this. मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? Everything is fine, right, from my side? I think now it should be even better. The audio should be better now. So guys, there is this quote. एक quote है कि yes, मैं record कर रहा हूँ meeting. You'll get the recording, don't worry. So what I was saying is there's this quote कि the way you do one thing is the way you do everything. I repeat, the way you do one thing is the way you do everything. एक तरीके से जो चीज आप करोगे आप हर तरीके से वही चीज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हो, मान लो यू स्ट्रगल गोइंग टू द जिम रेगुलरली, आप ट्रेडिंग में भी स्ट्रगल करने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन. अगर आप मान लो चीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल इन योर डाइट एंड ऑल, ट्रेडिंग में भी यू विल चीट एंड यू विल ब्रेक योर रूल्स, यू विल ब्रेक योर ट्रेडिंग रूल्स. सो द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं मीटिंग में, राइट? हाउ मेनी पीपल आर देयर? देयर आर 86 पीपल. नाउ डू यू थिंक हर एक इंसान इस मीटिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट. दैट्स जस्ट हाउ नंबर्स वर्क. एक लॉ ऑफ एवरेज है. सर्टन 10 to 20% पीपल विल बी देयर जो इस मीटिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे. 70 to 80% विल नॉट बी एबल टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट. बिकॉज मैं तो सेम ही बातें करने वाला हूं, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, दैट विल मेक श्योर दैट आप इसका मोस्ट बेनिफिट ले पाओ. अब वो कैसे है मैं बताता हूँ. तो now there are obviously two kinds of people. Somebody is sitting here. Let me take Vijay's example. So Vijay is sitting here properly with his laptop in front of the camera, video on everywhere. I'm sure he has a notepad and pen ready with him. And then maybe there's somebody, I don't know, some random name who's lying on his bed with his phone like this and watching this thing. Now आप लोग मुझे बताओ कि who is the person who will learn better, Vijay or that other person? Vijay, right? Obviously. Why? Because he's sitting here properly
He is there ready with his pen and everything, and he's listening carefully. While the second person, अब दोनों ने सेम पैसे भरे, दोनों ने 620 रुपए भरे, बट who is going to learn better? Vijay. Why? Because of the way he is prepared, the way he is sitting here. So before I start any important information, I just want you to make the most out of this, guys, because देखो, like I said, everybody has paid equal money. So I would be happiest अगर हर इंसान को equal benefit मिले, सबसे ज्यादा benefit मिले out of this. Because बातें तो मैं सेम करने वाला हूँ, सबको सबके लिए बातें मैं सेम ही करने वाला, ऐसा नहीं कि मैं विजय को काम में जाके कुछ और बोलने वाला, ऑब्वियसली नॉट, राइट? आई एम गोना से द सेम थिंग टू एवरीबॉडी. तो प्लीज मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, सिट प्रॉपरली एंड डू इट. एंड ये मैंने क्यों बोला पता है? बिकॉज दिस अप्लाइज टू ट्रेडिंग एज वेल, एंड आई शेयर समथिंग विथ यू फ्रॉम माई जर्नी. सो जब मैं एकदम नया नया शुरू किया था ट्रेडिंग, यू नो हाउ आई यूज टू ट्रेड. आई थिंक मैं ऑब्वियसली मेरी ना सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं थी. व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड इंडियन मार्केट्स बैक इन द बैक फ्यू इयर्स बैक, मेरी सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं थी. आई यूज्ड टू स्लीप वेरी वेरी लेट. तो मैं फोन पे अलार्म लगाता था 8:50 का, बिकॉज 9:15 9:30 बजे मार्केट खुलती थी. सो 8:50 का मैं अलार्म लगा के सोता था. पीपल आर स्माइलिंग, आई एम श्योर आप लोग भी यही करते हो, दैट्स व्हाई यू आर स्माइलिंग. बट 8:50 का मैं अलार्म लगाता था एंड आई यूज्ड टू वेक अप. अब मैं उठता था, फोन देखता था ऑब्वियसली, और नींद में रहता था मतलब ऑब्वियसली आई डिडंट यूज टू, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, ओके? मैं एकदम उठता था, ऑब्वियसली आई डिड नॉट वेक अप चार्ज्ड अप एंड ऑल, डिसिप्लिन नहीं था. आई यूज्ड टू लुक एट द फोन, स्नूज, आई यूज्ड टू हिट स्नूज, एंड 9:10 का अलार्म फिर से लगा देता था. चलो ठीक है यार, मतलब 20 मिनट और है, थोड़ा सा और सो लेंगे, एंड देन विल सी मार्केट कहाँ जा रहा है. Then I used to wake up at 9:10, 9:15, फिर देखता था मार्केट हिलना शुरू हुआ है, एंड आई यूज्ड टू चेक द स्टॉक्स दैट आई प्लान्ड आउट. फिर देखता था कभी कभार बहुत बड़ा गैप अप, गैप डाउन एंड ऑल दैट. आई यूज्ड टू स्लीप अगेन. फिर 12-12 बजे उठता था, एंड देन कभी कभी ऐसा दिखता था कि भाई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है. So this was one example. Now how do I trade? Now I am properly sitting, you know, एक और चीज. So now whenever I sit to trade, मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है कि, एंड गाइस जो भी मैं बोल रहा हूं ना, प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज ये आपको हेल्प करने वाला है, ये हेल्प करेगा ही करेगा. ओके? कोई भी चीज को एज अ मजाक मत लेना, कोई भी चीज को एज अ रैंडम चीज मत लेना, ठीक है? तो मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है कि मैं ना कभी भी टी शर्ट में बैठ के ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूं. आई विल ऑलवेज वेयर अ शर्ट. अब बहुत छोटी सी चीज है, बट प्लेज अ वेरी मेजर रोल हियर इन द माइंड. आप मुझे बताओ, यू आर टेलिंग योर सेल्फ कि मैं बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूं, एंड ये ट्रेडिंग की वजह से मैं फाइनेंशियली फ्री होने वाला हूं. और दूसरी जगह आप टी शर्ट में बैठे हो, राउंड नेक टी शर्ट में बैठे हो, नीचे शॉर्ट्स में बैठे हो. आप खुद को ही बना रहे हो, समझ रहे हो? खुद का ही बना रहे हो आप. यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ ओनली. Because one side you're telling yourself कि this trading thing is going to make me rich, make me a lot of money. And second time, on the other hand, you're sitting in shorts, chappals and round neck t-shirts. Not aligning, right? Now tell me one thing. If you tomorrow have $1 million meeting with somebody very, high net worth individual, मान लो एक इन्वेस्टर के साथ आपकी मीटिंग है, and he is going to give you $10 million of funding. Will you go in chappals and shirts, t-shirts? No, right? You will wear the best freaking outfit that you have. Why? Because obviously that has a lot of potential to make you rich. Now tell me, does trading not have the potential to make you rich? So why are we treating this like a very small thing? And बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे जो तरीके से आप इस प्रोफेशन को ट्रीट करोगे, वही तरीके से ये प्रोफेशन आपको ट्रीट करने वाला है. Right? So if you're waking up at 8:50, if you're waking up at 9 p.m, let's say मान लो आप इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो, मान लो आप 9 बजे उठ रहे हो सुबह में, and you're sitting in chappals and shorts and t-shirts, you are in your mind subconsciously telling yourself कि ठीक है, चलता है यार. अब if you're gonna tell yourself this, results भी वैसे ही आने वाले. You're gonna get results like that only, चलते हैं वाले results आने वाले. And then you'll be wondering कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूं. पूरा थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ है. यू अंडरस्टैंड? पूरा थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ है, द वे वी लुक एट दिस. अब
ऐसा तो है नहीं हमें ऑफिस जाना है, ऐसा तो है नहीं, दैट वी हैव टू गो टू ऑफिस, ड्रेस अप प्रॉपरली एंड ऑल ऑफ दैट. अगर if you're trading properly, then obviously you can wake up at your convenient time and then sit in front of the screen. That is why sometimes हम इस चीज को बहुत कैजुअली ले लेते हैं. वी टेक दिस वेरी कैजुअली. नाउ इफ वी आर गोइंग टू टेक आवर ओन प्रोफेशन कैजुअली, it is going to give us casual results. And this is the same thing I said about this meeting. If you're going to sit in this meeting casually without taking notes, lying on the bed on your pillow like this, it's not going to give you results. I'm being very frank with you. But if you're going to sit properly, take notes, your chances of making the maximum out of this gets very, very high. Right? With me so far? So guys, ये छोटी छोटी चीजें ना, मतलब ऑब्वियसली कभी आई एम श्योर कभी सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में. You must be like, भाई ये क्या बोल दिया, I mean, ये तो भाई एकदम out of the box था, right? But these small small things make a lot of difference, because every action that we're doing, subconsciously we are telling ourselves something. We're talking about psychology today, right? So psychology में we also have something called a subconscious mind. I'm sure इतना आप सबको पता होगा. There's something called a subconscious mind. So obviously there's one way where you tell yourself, well, when we talk to ourselves, we are telling ourselves subconsciously few things, whatever we are telling ourselves. But second thing is the actions that we do. Our actions also tell our mind subconsciously few things. अब मान लो, let's say for example, you are watching the charts, trade नहीं मिल रहा है, and you're just waiting out, and casually then you go on YouTube and you start watching some video, या फिर आप रील देखने लग रहे हो and all of that. Subconsciously you're telling yourself that this is more important to me than an opportunity. तो जो एक्शन है ना आपके, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल इन टर्म्स ऑफ what action you're taking while you're taking a trade, while you're sitting, because if you don't treat this as a full-fledged profession, guys, this will not give you good results. As simple as that. तो इस चीज को जितना सीरियसली आप ट्रीट कर सकते हो ना, उतना सीरियसली ट्रीट करो. ट्रस्ट मी, लाइक आई टोल्ड यू, वन वेरी सिंपल रूल. अगर आपने सिर्फ इतना रूल बना लिया ना कि आई विल नेवर सिट एंड ट्रेड इन अ राउंड नेक टी शर्ट, आई विल प्रॉपरली सिट इन अ फॉर्मल शर्ट, trust me, your results will increase. This has nothing to do with technical analysis, nothing to do with anything with charts. It has everything to do with here. And you all know कि पूरा गेम ट्रेडिंग का इधर ही है, इसलिए that's why you're sitting in this webinar. Otherwise, you would not even come here in the first place, right? So, guys, these small small things. Now, I am going to now talk a little bit about what are the problems that you are facing. सबसे पहले I'll cover all the common problems जो almost हर trader face करता है. उसके बाद then what you guys can do is you can use the chat box. आप chat box use करके you can share whatever you want me to talk about. I will speak on that. But majorly we'll speak on the things. मैं बार बार यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ obviously because a lot of people are still joining in the meeting, so I'm admitting them. But मैं ये बोल रहा था कि I'll talk on the most common points, okay? And उसके बाद then we can go on to the smaller things that will obviously help all of you. ठीक है? तो सबसे, you tell me what is the most common psychology issue that all of you face? What do you think the most common? Early exit? What is it? Stop loss? Whatever is it? Tell me. Like I told you, I am keeping this very frank. I am keeping this extremely unscripted, extremely honest. Okay, so we've got fear, greed, FOMO, fear of execution, early exit, fear. I see only fear. Getting emotionally attached. Fear. Okay. Okay, guys. I think we've got the first topic. Fear. Let's talk about fear. Okay. अब fear जो है. Okay, guys. Okay. Again, you can stop with the chat box. We'll continue again. I'll ask for a suggestion again. अभी fear पे बात करते हैं. So, fear of what? अब fear जो है, that can be multiple things. Fear of over trading, fear of taking a trade in the first place, fear of losing your money, and all those things. Right? अब सवाल ये है कि is fear a good thing or is it a bad thing? What do you think? Is fear a good thing or a bad thing? When I ask questions like this, you don't need to necessarily open your chat box. You can just do this or this.
I'll understand. वैसे भी anyway there are very few people who have turned on their videos. So Piyush says that fear is a good thing. Sai says fear is a bad thing. Okay. Then Sarvesh says fear is a bad thing. Okay. Yash says it's a good thing. Okay, guys. So let me share my perspective. It can be good as well as bad. Okay. So Xiaomi M2102J20SI says it can be good or it can be bad as well. यार अपने नाम रख लिया करो यार, थोड़ा सा तो प्रोफेशनलिज्म दिखा दो. So what I was saying is fear is like a mobile phone. मेरा फोन कहाँ गया भाई? Anyway, fear is like a mobile phone. Everybody has a phone as of now. The way you use it determines how it will impact your life. Do you think I don't fear? I am, my biggest fear is not being successful. My biggest fear is being the same person I was yesterday, and that pushes me. So I am using that fear in a positive way. अब मान लो आप, ये तो हो गया, ठीक है. Now let's take a real example of taking a trade. So what is important is what do you tell yourself when you get this fear? Do you think ऐसा कोई भी इंसान है दुनिया में जिसको डर नहीं लगता? भाई सबको लगता है. But what makes a difference is what you tell yourself when you experience this fear. So let's think about this, okay? Now let's say you are let me take somebody's example. Okay, let's say Nawaz sitting over here. Nawaz is here, and let's say Nawaz is a student, college student. Am I right, Nawaz? You look like a student, bro. You're a student, okay? So Nawaz sitting here is a college student, okay? And Nawaz is just started off trading, and Nawaz is learning technical analysis and all of that. But Nawaz को डर लग रहा है ट्रेड लेने से, या फिर लॉस का डर लग रहा है. Now, what do you tell yourself when you get this fear? The best thing that you can do is just ask yourself a few things honestly. अब एक बात बताओ. Now, let's say, ठीक है, ट्रेड लेने से डर लग रहा है. So, what if I don't take this trade? What if I don't trade at all? What if I don't take this trade? What is going to happen? I am going to remain a normal average college student. एक मेरे को होप मिला था ट्रेडिंग से, जिससे मैं भाई शायद कुछ कर पाऊँ लाइफ में. एंड अगर मैं वो भी करने से डर जाऊंगा तो शायद आई विल रिमेन द सेम एवरेज पर्सन आई वाज. नाउ द क्वेश्चन इज which fear is bigger, the fear of being average or the fear of trading? Which fear is bigger? I'm sure for most of you the bigger fear is being average, being a normal person and living a normal life. Isn't that a bigger fear? And that is using that fear positively. तो अब मेरे को डर लग रहा है ट्रेड लेने से, बट नाउ आई एम टेलिंग माई सेल्फ दैट भाई अगर ट्रेड नहीं लिया एंड आई डोंट लर्न एंड आई डोंट पुश माई सेल्फ टू डू दिस, आई एम गोइंग टू रिमेन द सेम पर्सन एंड आई एम गोइंग टू लीड एन एवरेज लाइफ. दैट्स व्हेन यू पुश योरसेल्फ. That's what you tell yourself. So basically डर सबको लगता है, but what you tell yourself during that fear determines आप क्या करने वाले हो आगे. So you ask yourself, do you want to lead a normal life? Absolutely not. Okay, let me see, why am I being fearful? मुझे डर क्यों लग रहा है? अब डर क्यों लग रहा है उसको भी एड्रेस करते हैं. तो ट्रेडिंग में डर मेनली दो चीजों की वजह से लगता है. व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, मेनली दो चीजों की वजह से लगता है. सो इफ यू आर टेकिंग नोट्स यू कैन राइट फियर, ड्रॉ 2 एरोज बिलो. दो चीजों की वजह से लगता है. फर्स्ट इज ईदर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, या तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा ट्रेडिंग में. दूसरा इज ईदर यू आर risking what you should not risk. What is this person saying? Most of the people are not able to join from the app link. Okay, Rohan bhai, if you're here, can you please send the meeting link in? The meeting link is sent in the WhatsApp community also, right? So many people, almost everybody is here, guys. I think 110 लोगों ने कुछ register किया था. We have 95 people here, so I think should be working fine. Unworthy risk, yes. Unworthy risk, yeah. So I'll repeat. Yeah, guys, please avoid using the chat box. I get distracted. Okay, or I'll just turn off the chat box as of now. How do I turn it off? Okay, I've disabled the chat box as of now. हम लोग बात करेंगे बाद में. So what I was saying, guys, is fear दो चीजों की वजह से आता है. One is lack of confidence, या तो आप confident नहीं हो. दूसरी चीज, या तो आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो. क्योंकि
वंस अगेन लेट्स एड्रेस दिस, इसका रूट कॉज समझते हैं। फियर क्यों आ रहा है? कोई तो रीजन है ना, कोई तो रीजन की वजह से आ रहा है। अब कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी वजह से डर आ रहा है, दैट इज फाइन, बिकॉज हर एक चीज में मतलब ऊपर से कोई कुछ लेके नहीं आया भाई नॉलेज में। एवरीबडी इज अ न्यू बिगिनर इन एवरीथिंग। हर एक इंसान एक पॉइंट पे बिगिनर था। सो अगर बिगिनर वाला फियर है, देन ऑब्वियसली एजुकेट योरसेल्फ मोर एंड मोर एंड मोर। सेम थिंग, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब मान लो, लेट्स से, लेट्स टॉक अबाउट मी, ओके, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से यू, आप मुझे 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर दो स्टेज पे, एंड यू टेल मी टू टॉक अबाउट ट्रेडिंग। मुझे डर नहीं लगने वाला है। व्हाई? बिकॉज दैट इज माई सब्जेक्ट। मुझे पता है क्या बात करना है, मुझे पता है कि आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव द राइट नॉलेज। बट मान लो फॉर एग्जाम्पल यू टेल मी टू टॉक अबाउट कुकिंग, नहीं आता भाई मुझे, आई विल फियर, मुझे डर लगेगा। सो द रियल क्वेश्चन इज हाउ मच डू यू नो अबाउट योर ओन सब्जेक्ट। एंड अगर डर लग रहा है तो दैट मीन्स शायद, शायद अभी मेरी नॉलेज एडुकेट नहीं है, शायद मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मुझे डर लग रहा है अभी भी। उसका उसको एड्रेस करने का बहुत सही तरीका ये है कि बैक टेस्ट करो, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपने बिल्ड किया उसको बैक टेस्ट करो। यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस, आपको और ज्यादा ज्यादा डेटा मिलेगा एंड यू विल बी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। एड्रेसिंग द सेकेंड पार्ट, फियर ऑफ अननेसेसरी रिस्क, वो सही फियर है। अब ऑब्वियसली फियर में, लाइक आई सेड अर्लियर, जब मैं फियर की बात कर रहा था तो यू गाइस अंडरस्टूड अभी तक, मेरे को आई एम श्योर यू गाइस अंडरस्टूड सो फार कि दो टाइप्स के फियर होते हैं, एक अच्छा फियर होता है, एक बुरा फियर होता है, राइट? द राइट फियर pushes you, the bad fear saves you, or stops you from doing something that's not good for you. Unworthy risk, unnecessary risk वाला जो fear है, that is not good for you, and that is your mind subconsciously telling you कि भाई बस हो गया, मत करो, this is where you need to stop. Once again, what you tell yourself at that point of time determines कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। So you're gonna tell yourself, most of the time ये होता है ना, हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू अबाउट टू टेक अननेसेसरी रिस्क, दिमाग क्या बोलता है, अरे चलना यार, कर लेते हैं यार, चलो ठीक है, 3 लॉस स्ट्रीक हो गया, ठीक है, अब तो लॉस हो ही गया है, इससे और क्या हो जाएगा, राइट? एंड वो 4th लॉस स्ट्रीक में इतना लॉस हो जाता है, फिर ट्रेडिंग करने लायक ही नहीं बचते, राइट? हाउ मेनी पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस? 3-4 बार लॉस हुआ है, सबके हाथ उठ रहे हैं भाई, सब सब हम सेम ही हैं भाई, मैं भी वैसे ही था। तो लगता है ना कि चले यार, अब इतना तो लॉस हो गया है, चलो थोड़ा और रिस्क लेते हैं, शायद रिकवर हो जाए, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। नाउ यू आर ऑलरेडी नॉट इन द राइट माइंडसेट। आपने ऑलरेडी 3 लॉस किया हुआ है, यू आर ऑलरेडी नॉट इन द राइट माइंडसेट, आपने ऑलरेडी लूज किया हुआ है, एंड नाउ सडनली यू वांट टू टेक मोर रिस्क। तो द बेस्ट वे, एंड ये हर चीज में अप्लाई होता है, ओके, ये हर चीज में अप्लाई होता है, एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट दिस सम टाइम, आई थिंक मैंने कभी शायद यूट्यूब पे भी बात किया इस पे। If you are ever facing any psychological challenge, just stop and ask yourself, is this a logical decision? कहना बड़ा आसान है, बट यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। अब उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कैसे करना है, मैं वो भी बताऊंगा। बट नोट दिस डाउन, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, स्टॉप एंड आस्क योर सेल्फ, इज दिस अ लॉजिकल डिसीजन? नाउ, अभी रिसेंटली आई थिंक मैंने आज ही एक रील डाली थी। आई वॉज जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ वेरी हाई लेवल ट्रेडर, ही वाज अ बिलियनर, एंड ही टोल्ड मी दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वन इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी ऑफ यू नो द डिफरेंस? चलो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ये होती है विच इज लाइक एन ओपिनियन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज एन इंफॉर्मेशन जो फैक्ट बेस्ड है। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब एक स्टॉक है, लेट्स से आज अभी आई थिंक कुछ तो इथेनॉल का कुछ तो न्यूज, गवर्नमेंट ने लिफ्ट लिफ्ट किया था बैन, तो आई थिंक ऑल शुगर स्टॉक्स वेंट अप। सो लेट्स से एक स्टॉक ले लेते हैं, रेणुका शुगर्स ले लेते हैं, ठीक है? नाउ रेणुका शुगर्स इज इन एन अप ट्रेंड एंड इट इज फॉलोइंग अ ट्रेंड लाइन। नाउ व्हेन आई ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, दैट ट्रेंड लाइन इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज एन ओपिनियन गाइस। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं, क्या गारंटी कि वो वही ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है? कोई गारंटी नहीं, राइट? इन दी एंड तो चार्ट तो वही करेगा जो चार्ट को करना है। सो दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूं चार्ट पे, दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो मेरा ओपिनियन है। बहुत डीप बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज लाइक एन ओपिनियन, जो मेरा बायस है, जो मेरा व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अगर मैं, हम सब, लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी
gets a chart. Everybody sit on the same chart and I tell you analyze it. Do you think हम सब same analysis करने वाले? Absolutely not. Because technical analysis is qualitative information. It is opinion based. Now, what is quantitative information? Quantitative information is fact based. Like, अब Renuka Sugar का balance sheet is showing 10% increase in the revenue. That is quantitative information. That is fact. But Renuka Sugar is following this trend line. That is qualitative information. So whenever you're getting a thought, मान लो कोई भी action आप ले रहे हो in trading, whenever you're taking an action, you need to ask yourself, is this action or is this thing backed by quantitative information or qualitative information? भाई बार बार ये लंबे लंबे वर्ड बोलने की जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट टेल योरसेल्फ ओपिनियन है या फैक्ट है यार. सिंपल सी बात है. ये बोलने में ट्रेड निकल जाएगा तुम्हारा. तो फैक्ट है या ओपिनियन है, राइट? सो आप लोग यार इतना सीरियस हो जाते हो, बीच बीच में जोक मारना पड़ता है मुझे. सो फैक्ट है या ओपिनियन है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. ओके, सो नाउ लेट्स से यू आर टेकिंग अनदर ट्रेड. 3 लॉसेस हो गए, 4th ट्रेड है. नाउ दिस ट्रेड लुक्स वेरी गुड. ऐसा लग रहा है कि भाई इसी ट्रेड में तो मैं 10 मिलियन कमाने वाला हूं. एंड योर माइंड इज टेलिंग यू दैट आई शुड टेक दिस ट्रेड अगेन आफ्टर लूजिंग 3 times. That is qualitative. What does quantitative says? What does the fact say? Let's say अगर आप एक रूल बेस्ड ट्रेडर हो, आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपने रूल बनाया हुआ है. So the facts say that Mr. Ganesh should not take more than 3 trades in a day. That is fact. That is a rule that you have made for yourself. That is quantitative. Okay? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट स्टे विथ मी, यू slowly understand. So you have to ask yourself this whenever you're taking a decision: is this fact or is this opinion? And 90% of the time, guys, 90% of the time it is going to be an opinion. And we are in a very tricky profession, guys. One of the most difficult, one of the most tricky professions that you can ever be, because we have to use the facts. अब we have to make sure कि वो opinion के साथ mix नहीं हो रहा है, राइट? बट फिर भी थोड़ा सा ओपिनियन लगता है, थोड़ा सा ओपिनियन मिक्स करना पड़ता है. उसके बगैर व्यू कैसे फॉर्म होगा, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी नो द फाइन लाइन बिटवीन द फैक्ट एंड द ओपिनियन. ओके, वंस अगेन विल टॉक मोर ऑन दिस, बट अपने आप से ये सवाल करना है. दिस विल मेक श्योर, इट विल एड्रेस एंड इट विल ब्रिंग आउट द ट्रूथ कि ठीक है, अब मेरे को ट्रेड लेने से डर लग रहा है. इज दिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? फैक्ट है या ओपिनियन है? अब अगर ओपिनियन है तो एटलीस्ट आई विल नो. अब ये जो मैं बता रहा हूं, क्या इससे इंस्टेंटली चेंज आने वाला? नहीं, इंस्टेंटली चेंज नहीं आने वाला. यू आर स्टिल गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक. यू आर स्टिल गोइंग टू टेक अ 4th ट्रेड अगेन. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बीइंग अवेयर. अभी एज ऑफ नाउ अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, यू नॉट इवन अवेयर कि आप क्यों कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग. यू जस्ट नो कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो. बट नाउ you will become aware. अब मैंने आपको बता दिया है कि fact or opinion you have to differentiate. So now you slowly become aware that I was doing over trading. अब आज मान लो मैंने 4th ट्रेड ले लिया, मैंने लॉस कर दिया. Now when I look back, I will be aware कि हाँ भाई गलती हुई है, नहीं करना चाहिए था. So you tell your mind that गलती हुई है. So slowly फिर उसके बाद 1-2 बार गलती होगी, फिर तीसरी बार होगी, चौथी बार your mind will tell you भाई कितनी बार करेगा, बस हो गया. एंड दैट्स हाउ यू विल स्टॉप. तो ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं ना, ये इमीडिएटली नहीं होने वाली. सो डोंट थिंक भाई आफ्टर दिस वेबिनार यू विल बिकम मार्क डुगलस. ओके, डोंट थिंक दैट. टाइम लगता है ऑब्वियसली भाई, सालों सालों लग जाते हैं टू चेंज थिंग हियर. बट इन द एंड गेम वही है. इन द एंड द गेम इज फाइटिंग हियर ओनली. इन द एंड चार्ट वार्ट तो मेरे हिसाब से फॉर्मेलिटी है भाई. आई पर्सनली फील दैट इन ट्रेडिंग चार्ट्स एंड ऑल, दैट्स ऑल जस्ट फॉर्मेलिटी. असली गेम इधर है, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू मास्टर. सो ये हो गया फियर के ऊपर. Now let me enable the chat box. Let's talk a little bit on something else. Okay guys, chat box is now active. Not able to understand why my trade is wrong. Okay, revenge trading. Revenge trading, I think already I covered in this thing, same thing, fear wali cheez mein. When when you're taking that trade, you need to ask yourself, क्या है मतलब random? Okay, random trading also. All of this is based, rule based. Hope.
मैं जो रूल्स फॉलो कर रहा हूँ क्या वो सही है? ओके, सेल्फ डाउट। ओके ओके ओके, लेट मी share something very important. I'll pause the chat box for now. So guys, सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एक्सपेक्टेशन सेटिंग। ओके, अब जो चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, ये आपका अर्ली एग्जिट, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस प्रॉफिट होल्ड करना नहीं करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सारी चीजों को एक साथ एड्रेस करने वाला हूं मैं। ओके, आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, एंड ये सारी चीजों का आंसर है एक्सपेक्टेशन सेटिंग। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सपेक्टेशन सेटिंग। एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज बेसिकली आप खुद को क्या बोल रहे हो बिफोर टेकिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड। व्हाट आर यू टेलिंग योर सेल्फ, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन साइड योर हेड बिफोर टेकिंग अ पर्टिकुलर ट्रेड। नाउ टेल मी, यू आंसर। अब मान लो, लेट्स से माई आई एम टेकिंग अ ट्रेड, ठीक है, एंड आई पुट अ टारगेट ऑफ 200 पिप्स, 200 पॉइंट्स, ठीक है। नाउ द ट्रेड गोज अप टू 150 पॉइंट्स। What will I tell myself? Not enough, not enough, अभी जा रहा है, एग्जिट करूं नहीं करूं, all those things, right? Let's change the example a little bit. Now, let's say I set a target of 100 points. Okay? But trade गया है 150. Now what will I tell myself? भाई लॉटरी लग गई, मतलब मजा आ गया, ट्रेड वेंट बेटर देन एक्सपेक्टेड। इन दी एंड मार्केट ने कुछ अलग किया गया। डिड द मार्केट डू एनीथिंग डिफरेंट हियर? नो, राइट? मतलब मार्केट में भाई दोनों सिचुएशन में, इन बोथ द सिचुएशंस, मार्केट मूव्ड 150 पॉइंट्स। वन ट्रेडर इज देयर हु इज रियली सैड बिकॉज उसको 50 पॉइंट्स नहीं मिले, वन ट्रेडर इज देयर हु इज रियली हैप्पी बिकॉज उसको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले। सो इन द एंड वी डिसाइड आवर ओन साइकोलॉजी, वी डिसाइड हाउ वी थिंक, एंड हाउ डू वी डिसाइड दैट? थ्रू द एक्सपेक्टेशंस दैट वी सेट। हम जो खुद के साथ एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं ना, दैट डिसाइड्स हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो दिस एक्सपेक्टेशन सेटिंग इनिशियली बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है। अगर आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं करोगे एंड रैंडमली ट्रेड ले लोगे, ट्रेड आपके फेवर में जाएगा या लॉस में जाएगा, आपको कोई आइडिया नहीं होने वाला है कि करना क्या एग्जैक्टली, बिकॉज यू डिड नॉट सेट एक्सपेक्टेशन इन द फर्स्ट प्लेस। अनदर थिंग, लेट्स टॉक अबाउट ओवर ट्रेडिंग, लेट्स टॉक अबाउट रिवेंज ट्रेडिंग। नाउ स्टार्टिंग से ही यू सेट एक्सपेक्टेशन फॉर योरसेल्फ, सॉरी, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 2 ट्रेड्स इन वन डे। एक्सपेक्टेशन सेट हो गई। नाउ लेट्स से यू टेक 3 ट्रेड्स, क्या होगा? योर माइंड इज गोना टेल यू भाई ओवर ट्रेडिंग हो गई। बट लेट्स से यू सेट एन एक्सपेक्टेशन की 5 ट्रेड लेने हैं, यू टेक 3 ट्रेड्स, व्हाट विल यू टेल योर सेल्फ? 2 ट्रेड और ले सकता हूं। तो इन दी एंड हम ही यार, वी आर द वंस हु आर गिविंग आवरसेल्व्स अ हार्ड टाइम। हम खुद की बजा रहे हैं इन सिंपल लैंग्वेज, बाय सेटिंग द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेक्टेशन प्रॉपरली सेट कैसे करना है, हाउ टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशन। ओके, अब ये थोड़ा सा एडवांस्ड बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अ लिटिल बिट एडवांस, अ लिटिल बिट डीप। सो फॉर द पीपल हु आर एटलीस्ट 1 or 2 years into trading will understand this. तो अब ऑब्वियसली if you spend 1 or 2 years into trading, you have certain idea, थोड़ा सा आइडिया आ गया, you have a little bit of idea in terms of what can be your risk management, what is your capital size, what returns you can expect, how many points the market will move on a certain condition. तो इतना थोड़ा बोड़ा आइडिया आ जाता है 1-2 साल तक, राइट? नाउ दैट्स वेयर एक्सपेक्टेशन सेटिंग गेट्स वेरी सिंपल, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। तो जिसने ट्रेडिंग में 1-2 साल डाला है ना, उसके लिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज मच मच इजियर एंड मच मच बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली उस बंदे ने टाइम स्पेंड किया यार मार्केट में। सो ऑब्वियसली दैट पर्सन ऑलरेडी हैज अ फाउंडेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट। नाउ टॉक, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू। अब ऑब्वियसली आपको तो पता ही नहीं भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बिकॉज यू आर अ कंप्लीट बिगिनर। सो व्हाट आई एग्जैक्टली आई गोइंग टू एक्सपेक्ट? Now, for you, in your case, if you're a complete beginner, you need to surround yourself with experienced traders, which obviously happens in our Discord community. So, and I'm pretty sure most of you are already in the Discord community, so I don't need to tell you anything. But surround yourself with experienced traders who can help you set those expectations.
तो मान लो लेट्स से we've got लेट्स से संदीप हियर. संदीप टेल्स मी कि ब्रो आई हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ ट्रेडिंग, मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, हाउ मच प्रॉफिट शुड आई एक्सपेक्ट. आई एम गोना टेल संदीप ब्रो ऐसा प्रॉफिट प्रॉफिट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली 1-1.5 साल तो भाई लॉस ही होगा, सीखने पे फोकस करो. So I'm setting that expectation for him because obviously right now he's a beginner, he's not capable enough to set expectations. Right? So if you're a complete beginner, surround yourself with experienced people so they can set expectations for you. फिर obviously धीरे 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 जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, you will be able to set expectations for yourself. तो ये तो हो गया beginners का. Now coming to the second part, which is basically a little bit intermediate people, जिन्होंने 1-2 साल spend किया market में. Expectations that you set, that obviously is backed a little bit by data. राइट तो उसमें यू नीड टू सी. सबसे पहली चीज, अब ये जितने भी डिसीजन है ना गाइस, जितना ज्यादा आप फैक्ट बेस्ड थिंकिंग करोगे, फैक्ट बेस्ड आगे डिसीजंस लोगे, उतना बेटर रहेगा. तो हाउ कैन यू डू फैक्ट बेस्ड एक्सपेक्टेशन सेटिंग? ओनली इफ यू आर जर्नलिंग योर ट्रेड्स. आप अगर ट्रेडिंग जर्नल फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल, आपके पास ऑलरेडी फैक्ट्स एंड डेटा है जिसके बेसिस पे आप एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हो. अब मान लो मेरी, लेट्स से आई टॉक अबाउट माय गोल स्ट्रेटजी. ओके, नाउ इन माय गोल स्ट्रेटजी आई नो दैट आई पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 20 pips and normally I can expect a moves of 40 to 50 pips on an average. So based on my trading journal मैंने एक्सपेक्टेशन सेट किया है एंड उसके बेसिस पे दैट मेक्स माय लाइफ वेरी सिंपल. दैट मेक्स माई लाइफ वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन सेटिंग. तो मैंने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है. अब कैसे किया मैंने? ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड माई ट्रेडिंग जर्नल. अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं है तो ऑब्वियसली गाइस यू शुड स्टार्ट मेंटेनिंग योर ट्रेडिंग जर्नल. एंड मान लो अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो बट आपने कभी मेंटेन ही नहीं किया ट्रेडिंग जर्नल, गो टू योर ब्रोकर, वट एवर ब्रोकर आप यूज कर रहे हो, गो टू योर P&L स्टेटमेंट, पूरा लिखो, राइट योर एंटायर ट्रेडिंग जर्नल. बहुत सर दर्द वाला काम लगेगा बट दिस इज द वर्क दैट मोस्ट पीपल डोंट वांट टू डू. एक्सेल शीट ये सब बनाना बनाना बहुत बोरिंग काम है, मुझे कोई शौक नहीं करने का, बट गाइस दैट हेल्प्स अ लॉट. दैट रियली हेल्प्स डूइंग फैक्ट बेस्ड थिंकिंग, राइट. तो मुझे पता चलता है फिर एक बार आपने प्रॉपर जर्नल मेंटेन किया, इफ यू हैव योर जर्नल एंड ऑल द बिगिनर्स दैट आर देयर गाइस, मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल्स. ट्रेडिंग जर्नल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको बताएगा कि फैक्ट बेस्ड क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. वेरी नाइस यश, आई सी योर ट्रेडिंग जर्नल. भाई शो ऑफ कर रहे हो यार, सही है. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ट्रेडिंग जर्नल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज उससे यूल गेट फैक्ट्स. अब मैं बताता हूँ फायदे. ओके, आई विल टेल यू द बेनिफिट्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल. मुझे सबसे पहली चीज ये पता चलता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू टेक अ ट्रेड एज पर माई स्ट्रैटेजी. बिकॉज आप कोई भी कुछ भी कर लो, ट्रेडिंग कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल है ना, आपने 100-200 ट्रेड्स जर्नल किए ना, यू विल कम टू अ कंक्लूजन. आप सारे ट्रेड्स की टाइमिंग देखोगे ना, आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द ट्रेड्स सिमिलर टाइम पे ही आ रहे हैं, सिमिलर टाइम पे ही मिल रहे हैं. आई एम श्योर एटलीस्ट सम ऑफ यू वुड हैव एक्सपीरियंस दिस. सो नाउ दैट इज हेल्पिंग मी सेट एन एक्सपेक्टेशन कि भाई ये टाइम पे मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रेड्स. अब नाउ somebody mentioned in the chat box कि मुझे रैंडम ट्रेडिंग करने की आदत है. रैंडम ट्रेडिंग करने की आदत क्यों है? क्योंकि भाई साहब आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं सेट किया कि ट्रेड्स कब ले सकता हूं मैं सबसे ज्यादा, राइट. दैट एक्सपेक्टेशन इज नॉट देयर. हाउ विल दैट एक्सपेक्टेशन कम? जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हो. ओके, सो आई वांटेड टू शेयर विथ यू. अभी मतलब ये मैं बोल रहा था तो दैट लेड मी टू अनदर थिंग, बट मेरे पास उसका कुछ पीपीटी या कुछ नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शेयर्ड विथ यू. चलो ठीक है, मैं आई विल पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी. सो देयर इज अ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, शायद सर के ऊपर से जाएगा बट आई एम स्टिल गोइंग टू ट्राई गिव इट अ शॉट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. चाहिए तो गूगल कर लो. बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप चार्ट देखोगे ना, सो दिस इज इट्स लाइक अ कर्व लाइक दिस. ओके, देयर इज वाई एक्सिस, देयर इज एक्स एक्सिस, this is like a curve. And in normal distribution you will see there's a rule of 68, 92, 95. So normal distribution basically says कि 68% of the data falls in the center, falls in the center of the distribution. So let me give you an example. अब मैं उसको ट्रेडिंग से रिलेट करता हूं. तो मान लो मेरे पास ट्रेडिंग जर्नल है, मेरा डेटा है, एंड आई एम ट्रेडिंग ऑन सर्टन टाइमिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. एज पर द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
62% of your trades are going to be at the same time. नो मैटर आप कौन से 30 मार्खान ट्रेडर हो, पता नहीं आपकी क्या स्ट्रेटेजी, आप कौन सी मार्केट ट्रेड कर रहे हो, बट दिस इज स्टिल गोइंग टू हैपन because it's the law of distribution. Just like there's law of gravity, there's law of distribution. So law of distribution says that 62% of the data always falls in the center. तो बेसिकली उसको हम अगर ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, वंस अगेन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन गाइस, थिंक अबाउट दिस. सो वंस अगेन इसको हम लोग अगर ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, द डेटा सेज, लॉ ऑफ एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेज दैट 62% ऑफ योर ट्रेडिंग टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी सिमिलर. The rest is going to be odd timings, maybe some other time or whatever, but 62% timings. So ये हो गया expectation setting with timings. Now जब आपको पता है ये चीज, when you know this thing कि 62% of your trades are going to be coming in this specific time, do you think you'll ever have to worry about random trading? नहीं, मतलब obviously like I said, instantly कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी चुल मचेगी फोन खोल के ऑर्डर डालने की, बट धीरे 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 वंस यू आर अवेयर दैट भाई यही स्पेसिफिक टाइम पे मुझे ट्रेड्स आते हैं, यू विल स्लोली अडेप्ट टू दैट. यू स्लोली अडेप्ट टू दैट कि ठीक है भाई, एटलीस्ट मुझे पता है, आई एम अवेयर दैट दिस इज द स्पेसिफिक टाइमिंग आई गेट माई ट्रेड्स. दिस विल मेक श्योर दैट यू डोंट टेक रैंडम ट्रेड्स. वंस अगेन एक्सपेक्टेशन सेटिंग, फैक्ट बेस्ड एक्सपेक्टेशन सेटिंग गाइस. सबसे सिंपल, आपको अगर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी लाइफ एकदम सिंपल करनी है ना, do fact based decisions, take fact based things. Simple, बहुत सिंपल है. Obviously करना मुश्किल है, but the most simplest thing I can do fact based trading, quantitative information, very simple, your life will become simple. तो क्या होता है, दिमाग को लॉजिक भी मिल जाता है, एंड देन उसके बाद अगर हम करते हैं ना, इफ वी स्टिल गो अगेंस्ट इट, देन वी टेल आवरसेल्व्स भाई तू है बहुत बड़ा, क्योंकि सामने है डेटा, you have the data in front of you and still you're taking a trade and the odd timing. Obviously बात है भाई, लॉस ही होने वाला है, obviously बात है ट्रेड अगेंस्ट ही जाने वाला है, right? So then you become aware, and as you become more and more aware, धीरे 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 you adapt to it. Like so ये हो गया random trade की बात. अब I think somebody was talking about, let's say this, क्या बोलते हैं, early exit के ऊपर बात करते हैं. Now once again let's assume you have maintained your trading journal. अब ट्रेडिंग जर्नल हम देखते हैं खोल के. वंस अगेन लेट्स अप्लाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस एज वेल, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेज दैट 62% ऑफ द डेटा, सॉरी 68% ऑफ द डेटा इज अगेन गोइंग टू फॉल इन द सेंटर. आई रियली विश आई कुड हैव शोन यू अ विजुअल ऑफ इट, बट मैं भेज दूंगा, यू विल हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, आई विल सेंड यू द डिस्ट्रीब्यूशन डेटा वाला चार्ट, तो फिर बाद में यू कैन कोरिलेट इट. बट normal distribution says that 62% of the data is in the center. Now let's apply that to early exits. Let's apply that to target setting. Okay, अब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल देखूंगा, I'll put my data into a normal distribution chart. So I will find out कि 62% of my trades have given me, let's say, 50 pips of target. Now the rest have either gone above 100 pips, above 60 pips, or they have closed below 50 pips. But what does the data tell me? डेटा मुझे ये कहता है कि भाई आपके 68% ट्रेड जो है वो आपको 50 पिप्स का टारगेट देते हैं, राइट? द रेस्ट इज ईदर अबव 50 पिप्स और बिलो 50 पिप्स. तो नाउ फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट एज अ टारगेट अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो? 50 पिप्स, वेरी ऑब्वियस. So do you think now when you tell yourself this, अब obviously मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अप्लाई कैसे करना है ये चीजें. मैं स्पून फीड नहीं करने वाला, बिकॉज यार आप सब जितने भी बैठे हो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, सबका अलग अलग टारगेट सेटिंग होगा, तो यू हैव टू अप्लाई दिस योरसेल्फ. ओके, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो बैक टू योर ट्रेडिंग जर्नल और योर ब्रोकर और व्हाटएवर, यू हैव टू सी कि सारे ट्रेड्स है मेरे. एंड गाइस टेल, ट्रस्ट मी, जब अभी तो सुन के अजीब लग रहा होगा या सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट वंस यू अप्लाई दिस नो एंड यू सी हाउ एक्यूरेट इट इज, कि genuinely 60% of the data is similar, you will have a magical moment, trust me. You will be like, भाई ये तो जादू है. So once again, early exit का problem solve. Why? Because from a logical perspective, I have understood and I've studied
कि भाई 68% ऑफ माई ट्रेड्स गिव मी 50 पिप्स ऑन एन एवरेज। तो अब अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूं, अपना सिस्टम ट्रेड कर रहा हूं, सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। सो 50 पिप्स अगर मेरा ट्रेड पहुंचता है, बेस्ट बेसिस ऑफ लेट्स से मान लो अगर ट्रेड ट्रेड चार्ट बहुत स्ट्रांग है, ट्रेंडिंग है, तो 50 पिप्स पे पहुंच के मैक्सिमम आई एग्जिट 50% एटलीस्ट। एटलीस्ट मैं एग्जिट करूंगा, मुझे मुझे पता है, बिकॉज ऑन एन एवरेज 62% ऑफ माई ट्रेड्स की 50 पिप्स ऑन एन एवरेज, सो आई एग्जिट 50 पिप्स। उसके बाद चाहे वो नीचे आए चाहे ऊपर जाए, once again that is also completely गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट। आई होप आप लोग यहाँ बैठे हो, एटलीस्ट इतना तो आपको पता है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। कब क्या होगा नो बडी नोज, बट प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो जब पता है प्रोबेबिलिटीज है तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे यूज करते हैं ना, क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं, राइट। सो ये हो गया अर्ली एग्जिट। अब उसके बाद व्हाट एल्स? अर्ली एग्जिट के ऊपर बात कर ली मैंने। आई एम होल्डिंग अ लॉस बट आई कैन नॉट होल्ड प्रॉफिट। once again what is the expectation that you're setting yourself? क्या अब आप क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो अपने साथ? व्हाट अभी ना, फ्रॉम आफ्टर, राइट आफ्टर दिस मीटिंग फिनिशेस गाइस, नोट दिस डाउन, आई वांट यू टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग जो आप ट्रेडिंग में कर रहे हो। एंड आई वांट यू टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इन अ वे कि भाई ये जो भी मैं कर रहा हूं, क्या ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? इज दिस अ फैक्ट और इज दिस एन ओपिनियन? एंड वन यू once you start asking this question, you will start to realize कि भाई जो भी चीजें मैं कर रहा था they are actually opinion based। अब ऑब्वियसली हम कौन होते हैं? लाइक गाइस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी क्लियर, वी आर वेरी स्मॉल पीपल इन द मार्केट। वी आर रिटेल ट्रेडर्स। वी हैव नो पावर अबव द बिग फिशेस इन द मार्केट। सो आवर ओपिनियन डज नॉट मैटर। मान लो आप बहुत बड़े ब्लैक रॉक हो, मान लो आप ब्लैक रॉक हो, इफ यू हैव एन ओपिनियन मार्केट शुड गो डाउन, यू प्रेस अ बटन, यस मार्केट विल गो डाउन। बट अभी वहां पे नहीं पहुंचे ना हम लोग, वी आर रिटेल ट्रेडर्स। सो आवर ओपिनियन डज नॉट मैटर। इट डजेंट मैटर व्हाट आई थिंक, डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक, मार्केट विल स्टिल डू जो मार्केट को करना है। सो उससे अच्छा देन लेट्स डू फैक्ट बेस्ड थिंकिंग, राइट, लेट्स डू फैक्ट बेस्ड एनालिसिस। सो I didn't really plan on telling you this quantitative wala thing or normal distribution wala thing, but real guys, if you apply this, trust me, your trading will go next level and life बहुत simple हो जाएगी। You will set clear expectations with yourself and things will get very, very clear. Okay, now I'm enabling the chat box again. Let's see what more do you guys want me to talk about. Doing nothing, consistency, self-doubt. Okay. Okay, let's talk about self-doubt. Revenge trading and all इसके ऊपर बात कर ली भाई मैंने। Let's talk about self-doubt. Recording मिल जाएगी, don't worry. So self-doubt, once again, self-doubt is kind of linked to fear, जिसके ऊपर मैंने already बात की हुई है। But why does self-doubt come? Why is self doubt coming in the first place? देखो, ऑब्वियसली दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली बात है कि यू हैवंट सीन सक्सेस येट इन ट्रेडिंग। आई थिंक मोस्ट कॉमन रीजन यही है कि भाई सक्सेस ही नहीं मिली है, तो मैं वो क्या मतलब, हाउ कैन आई इवन थिंक आई विल बिकम अ ट्रेडर एंड ऑल दैट। एंड वंस अगेन गाइस, द ह्यूमन माइंड इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। सो पहला थॉट नेगेटिव ही आता है, कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज आवर कंडीशनिंग अबाउट दिस, बट सेल्फ डाउट इज वेरी नॉर्मल। Now, I want you to ask yourself a very simple question, and I'm going to go a little bit philosophical over here. But what other option do you have but to believe in yourself? If you're not going to believe in yourself, if you're going to doubt yourself, anyway you're going to lose. But at least if you believe in yourself, at least chance तो है भाई सक्सेस होने का. At least there's a better chance to succeed in whatever you're doing. Forget trading. Keep trading aside. कुछ भी कर लो आप. If you're believing in yourself, at least there's a better chance you're going to win. बट अगर आप खुद को ही डाउट करते रहोगे, नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। बट वंस अगेन, इसको हम लोग लेट्स टॉक अबाउट ऑन सेल्फ डाउट, फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, क्वांटिटेटिव बात करते हैं इसके ऊपर। ये तो हो गया फिलोसफी, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव। सो नाउ वंस अगेन,
तो नंबर वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू रेफर इज द ट्रेडिंग जर्नल. अब ट्रेडिंग जर्नल हम रेफर करेंगे. नो ऑब्वियसली अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो बहुत हाई चांसेस है यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, व्हिच इज फाइन, वी हैव ऑल बीन देयर. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब लॉसेस देखते हैं अपने, बिकॉज डाउट क्यों आता है, क्योंकि लॉसेस होते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो लॉसेस है कि पीछे का रीजनिंग क्या है एंड क्या सीन है इसका बेसिकली. नाउ इवन इफ यू लुक एट ऑल योर लॉसेस गाइस, once again, law of normal distribution, law of average distribution, 62% of your losses will be most probably because of the same reason. Same reason, trust me, same reason. You won't believe it. एक बार, बस एक बार, आई जस्ट विश मैं आप लोगों के सारे लोगों के रिएक्शंस देख सकता हूँ when you guys actually apply this, but I don't think I'll get the chance to do that. But I really hope you guys will give me feedbacks on this, because I'm really looking forward to it. Because जब मैंने किया था ना, I was amazed. Okay, so when you look at all your losses and you apply the data on it, you will see कि 62% of your losses, 68% of your losses, whatever the average is, are happening because of the same particular reason. Now you tell me, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है. अगर आपको पता चल गया कि भाई ये एक वजह से ही मेरा 60% लॉस हो रहा है, विल यू नॉट स्टॉप डूइंग दैट? एंड वही गेम है, दैट इज द गेम. अंडरस्टैंडिंग की लॉस क्यों हो रहा है एंड उसको रोकना, उसमें बेटर होना, दैट इज द गेम. दैट इज हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल. वेरी सिंपल. सो एज ऑफ नाउ, इफ यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, गो टू योर लॉसेस, गो जर्नल योर ट्रेड्स. अब इसमें इन केस लेट्स से अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपने जिंदगी में कभी ट्रेडिंग जर्नल नहीं खोला है या ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया है, थिंग्स विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. बट द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना पीएनएल डाउनलोड करो एंड ट्राई टू रिकॉल, रिमेंबर कि भाई ये ट्रेड क्यों लिया था, क्या था एंड ऑल ऑफ दैट. थोड़ा सा लगेगा, खोदना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, बट इट विल बेनिफिट यू अलॉट, ट्रस्ट मी. तो यू विल गेट टू नो, जब आप अपने लॉसेस देखोगे यू विल गेट टू नो दैट 60 to 68% लॉसेस जो हो रहे हैं वो सेम रीजन की वजह से हो रहा है. नाउ व्हाट इज माय रोल? आई एम गोइंग टू नाउ स्टॉप डूइंग वट एवर आई वॉज डूइंग. अब when I did this, I realized कि specifically about the gold strategy जो मैं अभी currently I'm trading. So I looked at my losses and I applied this quantitative information on it, and I realized that 68% of my losses are happening because I am trading the US session. Once again, मैं ये नहीं बोल रहा US session बुरा है. I am talking specifically about my strategy. Okay, so don't take it other way. बट मैंने जब अपनी स्ट्रेटजी पे अप्लाई किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यूएस सेशन में जो है मेरे 68% लॉसेस यूएस सेशन की वजह से हो रहे हैं. जब भी मैं यूएस सेशन में ट्रेड लेता हूं मेरा लॉस होता है. नाउ दैट कुड बी एनीथिंग, राइट? मतलब अब हो रहा है तो हो रहा है भाई लॉस, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो the best thing I can do as a trader is stop trading the US session. Now, if anybody who is part of the 76 secrets of gold, you already know that I avoid US session. I don't take trades in US session. सिंपल सी बात है, पता है. अब नाउ देयर विल बी अ सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल बी लाइक, क्यों हो रहा है लॉस? नहीं भाई, मैं तो यूएस सेशन में प्रॉफिट करके दिखाऊंगा. अरे भाई, पता है लॉस हो रहा है तो मत करो ना यार. सिंपल सी बात है. व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ हीरो एंड बी लाइक, नहीं मैं तो यूएस सेशन में प्रॉफिट करके दिखाऊंगा? नहीं भाई, हम यहाँ होशियार बनने नहीं आए. वी आर हियर टू मेक मनी. सो सिंपल सी बात है, कोई चीज की वजह से अगर लॉस हो रहा है, जस्ट स्टॉप डूइंग इट. वेरी सिंपल. ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग ही छोड़ के बैठ जाना है. ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि एक ऑब्वियसली कोई रीजन है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है. वी हैव टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर डूइंग. सो आई सॉ, अब अगर मैं अपना ईगो लेके बैठ जाऊं कि नहीं भाई मैं तो अल्फा ट्रेडर हूं, मेरे को तो भाई यूएस सेशन में भी प्रॉफिट करना है, नहीं नहीं हो सकता ना यार. आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट सुपर ह्यूमन. आई कैन नॉट बी 100% राइट इन एवरीथिंग, राइट? सो सिंपलेस्ट थिंग, नहीं करना है भाई. यूएस सेशन नॉट माई कप ऑफ टी. लंदन में खुश हूं मैं. And since I started doing that, my accuracy went super high. As simple as that. So we have to find what doesn't work. Stop doing that. Find what works. Focus on that. Simple as that. Don't try to change the market. Don't try to change anything about it. Because trust me, you will fail miserably. नहीं होगा. We are retail traders. We are small people. So ये हो गया सेल्फ डाउट के ऊपर. ठीक है, दिस इज हाउ यू बेसिकली clear out self doubt. Now let me see what else did you guys text. ये क्या बता रहे हो भाई?
जरा देख लूँ मैं क्या है, इतना एफर्ट मार के लिखा है भाई। अगर बैक टेस्टिंग से एक चीज वर्क कर रही है, भाई हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया, सेम करंट मार्केट में जो, तो वो फैक्ट होगी या ओपिनियन? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन भाई। एक काम करो यार, तुम अनम्यूट ही कर लो अभी। भाई मैं ऐसे कह रहा था आपसे कि पहले तो थैंक यू, एंड सेकंड बात ये भाई कि जैसे मैंने बैक टेस्ट किया कोई चीज, ठीक है, हम्म। गोल्ड में जैसे मैंने मेरा बैक टेस्ट करा कि मेरे को फ्लैग अच्छा लगता है गोल्ड में ट्रेड करने से, ओके। और वो मैंने मेरा हर बार उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे मैंने बैक टेस्ट किया, अगर वो करंट में बन रहा है तो मेरा ओपिनियन हुआ या फैक्ट हुआ? तो बैक टेस्ट किया है ना, बैक टेस्ट किया है, हम्म। दिख रहा है कि चल रहा है, दैट इज फैक्ट हम्म। कि चल ओके। रहा है। बट आपका जो व्यू है ना फ्लैग वाला, वो हाँ ओपिनियन जी। है। दैट इज योर ओपिनियन कि हाँ भाई फ्लैग पैटर्न बन रहा है, दैट इज योर ओपिनियन। हम्म। बट फ्लैग पैटर्न काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इज अ फैक्ट। ओके। थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वैलिड क्वेश्चन। हाँ जी। बट नहीं, जैसे मेरे को जैसे पता है कि मेरा अगर फ्लैग 0.3 से रिट्रेस करता है आपके आपके वाले फिफ्थ से, ओके। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरे को इतना टारगेट मिलता है, ठीक है, आई थिंक 65 पिप्स टारगेट मिलता है। ओके। तो हर बार मिलता है अगर वो सेम चीज हो रही है, हम्म। तो उससे क्या होगा, वो मेरा फैक्ट है या वो ओपिनियन है? एब्सोल्युटली फैक्ट है ना वो, क्यों? बिकॉज आपको ये एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि भाई मैं अगर ये बेसिकली ये रिट्रेसमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इतना टारगेट मिल रहा है। हम्म। वो आपने, आई एम श्योर आपने जर्नलिंग की है and आपने बहुत बार ये हम्म। ट्रेड लिया हुआ है, इसलिए आपको ये पता है बात। हाँ जी। दैट इज फैक्ट, दैट इज योर ओके। एक्सपेक्टेशन दैट जो सेट हुआ है। ओके। एक बार और एक ही सेकंड भाई, एक। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भाई आपने कहा था ना भाई, ब्रांड पहन के देखना मजा आता है, मोटिवेशन मिलती है भाई। क्या है? ब्रांड पहन के देखो, आपने बोला था ना। हाँ। थैंक यू भाई। क्या मस्त है, चल कौन रही सा है है, ट्रेड। बर्बरी है? बर्बरी है भाई। क्या बात है। थैंक यू भाई। ओके गाइस, तो आई थिंक यार, आई थिंक आई स्पोकन मेजरली ऑन द मेजर मेजर थिंग्स। आई थिंक लेट्स इंटरैक्ट अ लिटिल बिट, आधा घंटा और है। आई थिंक बातें करते थोड़ी, व्हाट से? सो एक घंटा, आई थिंक एक घंटा स्पेंड भी हो गया, रियलाइज भी नहीं हुआ मुझे ऑनेस्टली। बट डोंट वरी, आई एम नॉट द टिपिकल गाय जो टाइम देख के आई एम गोना एंड द मीटिंग, ये एक घंटा हो गया बाय, नो आई एम नॉट गोना डू दैट, डोंट वरी। बट so major things I've spoken about, what you tell yourself, how you behave, how you treat trading, expectation setting, fact based thinking, ये सारी चीजें जो है गाइस, ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो इन ट्रेडिंग, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ओके, इट इज यूनिवर्सल जो मैंने आपको बताया। सो यू कैन अप्लाई दिस एवरीवेयर एंड दिस इज गोइंग टू वर्क। सो let me so now I'm going to spend some time, let me talk to 10 people, I speak to 10 people and obviously I think उतने लोगों ने वीडियो ऑन किया, अभी सबके वीडियो ऑन होने स्टार्ट होंगे, बिकॉज नाउ आई एम गोना से दैट मैं बात करने वाला हूँ, बट नहीं, अब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ भाई, जिसके अभी ऑन है मैं उनसे ही बात करने वाला हूँ। ये सर्वेश भाई बड़ा हंस रहे हैं, चलो भाई इनसे बात करते हैं। हेलो सर। यस ब्रो। मैं कैसे? आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए कुछ सर। आ रहा है। सर पहले तो आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। अभी मेरी एज अराउंड 15 है। आई एम 11 ग्रेड हम्म। साइंस स्टूडेंट। मुझे मार्केट में करीब 6 महीने हो गए अभी। आई एम करंटली डूइंग हेजिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि इतना भी क्योंकि प्राइजेक्शन वगैरह नहीं आता ना, तो हम्म। आपकी वीडियोस वगैरह देख के प्राइजेक्शन सीख रहा हूँ करंटली। अटके कहाँ हो, प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी फिलहाल, एज ऑफ नाउ क्या प्रॉब्लम आ रही है? अर्ली एग्जिट्स, नॉट होल्डिंग ट्रेड्स, लॉसेस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, मैंने शेयर किया जो। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट ब्रो। लेट्स सी, लेट्स टॉक टू विजय। हेलो कुमार भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। बहुत सही रहा वैसे सेशन। तो मेरा वैसे डाउट था आपसे हम्म। पूछने के लिए कि मेरी जो करंट एक्यूरेसी है ना, वो हम्म। थोड़ी सी, मतलब कभी कुछ महीने ऐसे होते हैं कि अच्छे ट्रेड्स चले जाते हैं, 70-80% हो जाते हैं। कभी कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें 20-30% ही बनता है, मेजर लॉसेस में चले जाते हैं। बट अभी 2 महीने से तो काफी अच्छा चल रहा है कि ओके। प्रॉफिटेबल हूँ अभी इन चीजों में।
तो कभी हम्म उन चीजों में डाउट आता है कि कभी ट्रेड मिलते हैं, जैसे कभी कोई सामने बैठा होता है, कभी 3-4 दिन तक कोई ट्रेड ही नहीं मिलता, हम्म बैठा होता हूँ वो सोचने में, उसमें सेल्फ डाउट आने लग जाता है। तो वही चीज थी, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया अभी। बस एक ओके चीज पूछनी थी, थोड़ा एक्यूरेसी कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ? हम्म तो एक्यूरेसी के ऊपर ना मैं बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं थी वो, बट दैट बुक सेड कि 96% of your revenue comes from 4% of the activities that you do. I'll repeat, 96% of your revenue comes from the 4% of the activities that you do. तो 96% प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो ना, वो सिर्फ आपकी 4% एक्टिविटीज से आ रहा है। तो आपका काम एज अ ट्रेडर टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी ये होना चाहिए कि वो जो 96% एक्टिविटीज मैं कर रहा हूं, उसको हटा के मैं 4% पे ही फोकस करूं। अब वो 4% कैसे आएगा मैं बताता हूं। नाउ लेट्स से आप अपने लॉसेस देखते हो, ठीक है, यू लुक एट ऑल योर लॉसेस। अब उस पर आप एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि 60% ऑफ योर लॉसेस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर एक्टिविटी। आप उसको साइड में करके हटा दोगे, यू इंप्रूव ऑन इट। देन ये जब आप लेवल अप करोगे, उसके बाद फिर से ऑब्वियसली लॉसेस तो होने ही होने हैं, चाहे आप कितने भी महान ट्रेडर बन जाओ, लॉस तो हो गई। सो बट योर लॉसेस, जो लॉस का रीजन है ना, वो लेवल अप हो जाएगा, वो अपग्रेड हो हम्म। जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर से आपको चेक करना है कि भाई अब लॉसेस किस रीजन से हो रहे हैं, देन फिर उसको हटाना है, उसको साइड में करना है, देन फिर लेवल अप हो जाएगा लॉसेस। तो एज अ ट्रेडर अगर आपको ये चेक करना है ना कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यू शुड चेक कि भाई मेरे जो लॉसेस है, वो लॉसेस का जो रीजन है वो अपग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइक मान लो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में मैं लॉस इसलिए कर रहा था बिकॉज मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही सही नहीं था। उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस ठीक कर लिया, अब मेरे लॉसेस का रीजन हो गया है अर्ली एग्जिट। ठीक है, मैंने अर्ली एग्जिट ठीक कर लिया, अब मेरे लॉसेस का रीजन है टाइमिंग्स, यूएस सेशन, लंदन सेशन। ठीक है, वो मैंने ठीक कर लिया, अब मेरे लॉसेस का रीजन कुछ और है, और फिर कुछ और है, फिर कुछ और है। सो दिस इज हाउ यू कीप अपग्रेडिंग, एंड इससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो दैट कीप्स ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो एक्यूरेसी बिल्ड करने का मेरे हिसाब से तो यही सही तरीका है, मैंने ऐसे ही बिल्ड किया है भाई, कि कीप अपग्रेडिंग योर लॉसेस। जो आपका लॉस का रीजन है ना, वो अपग्रेड होते रहना चाहिए। हम्म। Right? तो यही देखो कि ऑब्वियसली इन दी एंड लॉस ही देखना है, एंड जो भी आपका रीजन है उसको सॉल्व करते जाओ एंड कीप अपग्रेडिंग। दैट्स हाउ यू यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी। हाँ हाँ भाई, यही सेम चीज आपने सही बोली थी कि मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मैं अर्ली एग्जिट ले रहा था कुछ चीजों में, पर उस चीज को मैंने इम्प्रूव करा, तो 2 महीने से अभी ठीक चल रही है चीजें, कभी ये चीज हो रही है। इस चीज पे हम्म, ध्यान दूंगा। करेक्ट, ऑल द बेस्ट ब्रो, परफेक्ट। थैंक यू ब्रो। मिस्टर विद्यासागर परमार, पम्मार, सॉरी। Hello, sir. Thank you for the opportunity. हाउ आर यू ब्रो? I'm good, bro. What about you? आई एम गुड, आई एम गुड। वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Karnataka, Bangalore. Welcome. I was just Bro, I yesterday. texted you so many times, but you didn't reply to me. I'm sorry, bro. I'm actually I was there I only was for 2 planning to days. meet you in Bangalore, Where were you in Bangalore? Where are you in Bangalore? in Whitefield. Acha, Whitefield is very far. I was staying here in ITC Gardenia. Bro, it doesn't feel for for a great opportunity. No, no. I just missed that. I Anyway, texted your group also, but they said they just left Bangalore yesterday. hmm. Anyway, bro. So tell me, So how can I help भाई you? मैं ऑलरेडी इंडियन मार्केट में कर रहा था, सो बहुत अच्छा वाला लॉसेस करके लिया। Hmm. सो अभी मैं फोरेक्स में शिफ्ट होके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हुआ। तो मैं फोरेक्स में चालू करते करते अच्छे से प्रॉफिट्स वगैरह किया, बाद में फिर से लॉसेस हुए। तो मेरा जो अकाउंट $240 का था, सो डायरेक्टली $74 तक आया। फिर से मैं $45 एक ही दिन में प्रॉफिट कमाया। फिर से फिर से उधर 70 पे ही आया वो अकाउंट मेरा पूरा, Hmm. ऐसे ही रैंडम ट्रेड्स वगैरह करते करते। फिर Hmm. से एक दिन सुबह लास्ट 15 लास्ट मंडे शायद 2 वीक्स पहले, उस दिन ट्रेड किया था। उस एक ही ट्रेड पे मेरा $141 का प्रॉफिट हुआ। तो Okay. जो मैं लॉसेस किया था पूरा रिकवर किया, $266 तक मेरा अकाउंट रिकवर हुआ। Hmm. फिर से ट्रेडिंग चालू किया, वो एकदम से मेरा पूरा अकाउंट लो करके रखा मैं, ऐसे रैंडम ट्रेड्स ऐसे। हाँ, एकदम से $140 किया मैं, अभी तो होशियार हूँ बोल के।
वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, फिर से पूरा अकाउंट ब्लो करके रखा हूँ मैं। हम्म तो अभी मैं फिलहाल Jan 1 तक ट्रेड नहीं कर रहा, सो जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन ऑल द साइकोलॉजी थिंग्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। हम्म सो व्हाट यू रेकमेंड फॉर मी? हाँ, सो एब्सोल्युटली क्या होता है कि ऑब्वियसली ईयर एंड में ना मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो ड्राई अप हो जाता है, फॉरेक्स मार्केट स्पेसिफिकली। तो अगर आप एक बिगिनर हो, एंड अभी ऑब्वियसली मैंने आपको बहुत सारी डेटा पॉइंट्स बताया, आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जर्नलिंग करो, ये करो, वो करो। अब अगर आप एक बिगिनर हो, ऑब्वियसली आपके पास डेटा ही नहीं है ना टेस्ट करने के लिए, आपके पास जर्नल ही नहीं है। सो एज ऑफ नाउ व्हाट यू कैन डू इज एक स्ट्रैटेजी देखो, एक सिस्टम फॉलो करो एंड उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट इज फॉर द फुल ईयर, उसका आपको डेटा मिल जाएगा, एंड वो डेटा यूज करके देन यू कैन स्टार्ट फ्रेश जब आप जनवरी से फिर से ट्रेड करोगे। सो आई दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके ओके, श्योर श्योर, ओके, थैंक यू भाई। मिस्टर लोकेश, हाउ आर यू ब्रो? Hello, am I audible? यस ब्रो, हाउ इज योर डैड? He's fine, he's fine. घर का काम हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया, चल रहा है भाई। ओके, मैं सोचा आप भूल गए होगे, but you remember. आई रिमेंबर एवरीथिंग ब्रो, टेल मी। Yeah. So as you know, मैं around 2.5 years से Indian markets में trade कर रहा हूँ। Continuous past 1 year से और approximately 8 months से it's been like I've been not a profitable trader, not a loss making trader. It's a break even stage. ओके So मैं ट्रेड जनरल्स कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, डेटा वगैरह जो भी है, मार्किंग आउट माय मिस्टेक्स एंड ऑल। सो द मेजर प्रॉब्लम वेयर आई वाज फेसिंग वाज फोमो, बिकॉज मार्केट गैप अप्स में बहुत ट्रैवल कर रहा है इंडियन मार्केट, एज वी ऑल नो। राइट। तो उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है, और असल में जब मार्केट ओपन होता है तब ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज नॉट लॉट ऑफ इश्यूज एज अ ऑप्शन बायर। सो इसीलिए मैं अभी करंटली मैंने 70 सीकर्स ऑफ गोल्ड भी परचेस किया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू फॉरेक्स मार्केट, बिकॉज यहाँ पे आई एम अनेबल टू प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड। एंड मैं स्टार्टिंग से जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तभी से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि टाइम लगेगा सीखने को। सो आई ये 2.5 साल में मैंने ज्यादा लॉस भी नहीं किया है। आई हैव ओनली लॉस द अमाउंट विच आई कुड अफोर्ड। राइट। So अभी I am at this break-even stage in Indian markets and I'm entering forex market. So I'm a little confused on how do I tackle forex market. So I doesn't take as much as time which took me in Indian markets, and also कैसे manage करूँ at the same time is my question. तो लोकेश, द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन इज कि, एंड ये इसके ऊपर मैं बात करने वाला था एनीवे, सो ऑल द पीपल दैट आर हियर। अब क्या होता है कि ऑब्वियसली अभी मैंने आपको साइकोलॉजी बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू कि साइकोलॉजिकली कैसे सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैंने ये बताया कि डेटा को यूज कैसे करना है एंड डेटा को अप्लाई कैसे करना है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक सही तरीका, वो सही डेटा भी होना चाहिए, आपके पास सही सिस्टम भी होना चाहिए, राइट? अब मान लो अगर आप रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, एंड अगर आप उसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करोगे तो वो नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली डेटा आल्सो हैज टू बी करेक्ट, राइट, फॉर ऑल दीज थिंग्स टू वर्क। सो द आई थिंक द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू हैव डन इज यू हैव गॉटन 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड, जिसकी वजह से आपके पास एक एटलीस्ट पूरी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी है, राइट? अभी यू वॉच्ड इट एज ऑफ नाउ, यू मस्ट हैव विटनेस्ड, यू मस्ट हैव सीन, देखा है गोल्ड कोर्स, देखा है अभी या फिर बाकी है देखना? मैंने अभी चैप्टर 1 नहीं देखा है, पार्ट सेकंड थर्ड ऑन येट टू बी सीन है। ओके, सेक्शन 2 या फिर चैप्टर 2? सेक्शन 1 देखा है अभी, फर्स्ट 7 सीक्रेट्स। ओके, फर्स्ट 7 देखा है। तो लोकेश, आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जो भी एक एक चीज मैंने बताई है सब क्वांटिटेटिव है, एक भी ओपिनियन नहीं बताया मैंने, एक भी ओपिनियन नहीं है मेरी स्ट्रेटेजी में, राइट? एंड दिस इज अ हिंट टू ऑल ऑफ यू गाइज, अगर आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, एवरीथिंग शुड बी फैक्ट बेस्ड। मैं जोन कैसे मार्क करता हूं ना, वो भी क्वांटिटेटिव है, वो भी फैक्ट बेस्ड है। ऑब्वियसली जिन्होंने गोल्ड कोर्स लिया हुआ है उनको पता है, बट एवरी सिंगल थिंग दैट आई डू is fact based, and that is why I have such an amazing accuracy. So the best thing, like I said, coming back to your question Lokesh, the best thing you have done is gotten gold course. अब आपको ये करना है, you have to back test now. Anyway जनवरी तक मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट जो ड्राई रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, so you have to watch the entire gold course, back test everything and see whether it's working for you or not. And मार्केट में शिफ्ट एक, मतलब मान लो आप इंडियन मार्केट में हो, नाउ यू आर शिफ्टिंग टू गोल्ड, शिफ्ट करने का ना बेस्ट तरीका क्या होता है? Once again, expectation setting in terms of इंडियन मार्केट में ऐसा क्या है नहीं था जो यहाँ पे है, वो एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए हेड में। लाइक मान लो लेवरेज इंडियन मार्केट में कम है, मूवमेंट इंडियन मार्केट में कम है कंपेयर टू फॉरेक्स,
तो expect more volatility, expect more moves, expect more opportunity. One thing. फिर इंडियन मार्केट में ऐसा क्या है जो गोल्ड में नहीं है? मे बी गैप अप्स, गैप डाउन्स. सो एक्सपेक्ट, don't expect gap ups, gap downs like that. मैं just example there about obviously चीज है, but if you're shifting from Indian market to gold, you have to ask yourself, बहुत expectations clear करनी है कि यहाँ पे क्या अलग था, यहाँ पे क्या अलग है. एक बार वो clear हो गया, उसके बाद in the end trading तो pretty much simple ही है, price action and all of that. You have the strategy also with you, so that is going to be very very simple. बस दिमाग में expectation clear कर लेना, because क्या होगा, if you have been trading in Indian markets, now suddenly you're trading in gold. अब इंडियन मार्केट में आदत है मे बी दिन का एक ट्रेड मिलने की, मे बी हफ्ते में एक दो ट्रेड आदत है, राइट? अब सडनली गोल्ड में आओगे भाई, दिन का 3-4 ट्रेड मिलने वाला है. यू विल गेट ओवरवेल्म्ड कि भाई ये क्या हो रहा है, राइट? सो हैव दैट एक्सपेक्टेशन वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड कि क्या अलग होने वाला है यहाँ पे, एंड दैट विल हैपन वंस अगेन. ये बैक टेस्टिंग से होगा. सो आई वुड सजेस्ट यू हैव द सिस्टम विद यू, उसको बैक टेस्ट करो, you will gain confidence also, and expectation setting भी हो जाएगी. Done, brother. Okay, last 3 people. Okay, let's speak to Sandeep. Hello. Yes, bro. One of my very dear mentors is named Sandeep. Thank you, Umar bhai. एक्चुअली आई एम पहली बात तो ये कुछ मुझे नया मिला है साइकोलॉजी क्लास में, जो बाकी जगह बुक्स में या एंड ऑल नहीं, प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड. और मैं आपका डिस्कॉर्ड कम्युनिटी काफी टाइम से हूँ. अच्छा उमर भाई, मेरे को मेनली 1-2 प्रॉब्लम्स आ रही है. सपोज मैं 1-1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आपका अल्फा ट्रेडर कोर्स भी लिया, ट्राई कर रहा हूँ मैं. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 9 to 6 वर्किंग में एज ए इंजीनियर प्रोफेशन. तो क्या हो रहा है, मेरे से अच्छे ट्रेड्स मैं स्पॉट भी करता हूँ, लाइक फिबोनाची या कुछ भी, वो मेरे मिस हो जाते हैं. फिर मैं वो बार है ना, वो फिर फोमो टाइप का, कि फिर मैं ट्रेड्स के पीछे भागने लगता हूँ. तो मेरे 3-4 ट्रेड्स फिर नेगेटिव में ही चले जाते हैं, और 4-5 दिन मेरा रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस होता है, बट 5वें 6ठे या 10वें दिन वो पूरा खराब हो जाता है, तो मैं ह्यूज लॉसेस कर लेता हूँ. तो सबसे पहले इससे कैसे टैकल करें. सेकंड उमर भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या फॉरेक्स या उसमें शिफ्ट होना ठीक है, क्या लीगल है, क्योंकि मैं एज अ गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे लिए क्या रहेगा, क्योंकि मैं ऑफिस में पूरा टाइम नहीं दे पाता, कोई बात करने आ जाता है, काम हो जाता है, कुछ ना कुछ तो मिस हो जाता है. राइट. तो इसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा मेरे लिए. ओके, तो एक है ना, मैंने बहुत अच्छी रील देखी थी जिसमें द पर्सन सेड कि इफ यू वांट टू विन, यू शुड मेक विनिंग इजी. मतलब अगर आपको लाइफ में जीतना है ना, तो जीतने को भी आसान बनाना पड़ेगा. लेट मी एक्सप्लेन मोर डिटेल. लाइक मान लो मुझे जिम जाना है, ठीक है? अब ना हो, अगर मैं ऐसा जिम ज्वाइन करता हूँ जो 1 घंटा दूर है, आई एम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ टू विन, बिकॉज जिम तो वैसे भी जाना है. बट अगर मैंने साला ऐसा जिम ज्वाइन कर लिया जो 1 घंटा दूर है, आई एम मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ टू विन. नाउ इफ आई ज्वाइन अ जिम दैट इज 15 minutes अवे, आई एम मेकिंग इट इजियर फॉर माई सेल्फ टू विन, बिकॉज जीतना तो एनीवे, और कोई ऑप्शन नहीं लाइफ में. बट उसको भी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना, कि कितना इजी है मेरे लिए जीतना और कितना हार्ड है मेरे लिए जीतना. एज ऑफ नाउ संदीप भाई, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अपने लिए डिफिकल्ट कर रहे हो जीतना बाय डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, बिकॉज आपकी 9 to 6 जॉब है, ठीक है, विच इज फाइन. आप उसका कुछ नहीं कर सकते, जॉब तो करनी है अभी, वो ब्रेड एंड बटर है, राइट? तो हाउ कैन यू मेक विनिंग इजी फॉर योरसेल्फ इज बाय डूइंग स्विंग ट्रेडिंग. क्योंकि अब अगर आप जॉब के साथ साथ आप ट्राई करोगे दिन के बीच में ट्रेड लेना, यू आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ टू विन. समझ रहे हो? तो जीतना तो है अब, तो व्हाई नॉट मेक इट इजी. तो मेक इट इजी बाय डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, जो आपके लिए इजी रहने वाला है एंड और सिंपलर रहने वाला है. मे बी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, मे बी थोड़ा सा और टाइम लगेगा कंपेयर टू इंट्राडे एंड ऑल ऑफ दैट, बट एटलीस्ट जीतोगे तो सही. एंड इन द एंड तो वही चाहिए ना, हम तो यार यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, राइट? किसी को थोड़ी ना कुछ प्रूव करना है. सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, कि अगर आपकी 9 to 6 जॉब है, फोकस ऑन स्विंग ट्रेडिंग. मे बी फॉरेक्स मार्केट जो शायद आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगा, बट अगर आप अभी तक यू हैव बीन ट्रेडिंग इंडियन मार्केट्स, आप इंडियन मार्केट से ट्रेड करते आए हो, सो फोकस ऑन इंडियन मार्केट्स. अभी इलेक्शन भी है, मार्केट्स आर मूविंग वेरी नाइसली. एज ऑफ नाउ फॉरेक्स में शिफ्ट करने का सही टाइम नहीं है, बिकॉज फॉरेक्स जो है ईयर एंड तक थोड़ा सा ड्राई हो जाता है. तो इंडियन मार्केट्स करो, स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट करो.
and I'm sure you'll see good difference. हेलो। Yes, bro. अच्छा उमर भाई, मतलब मेरे लिए कुछ, मैंने सुना था लीगल वगैरह का प्रॉब्लम है कुछ, हम इस तरह का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एज अ गवर्नमेंट जॉब में कहीं कुछ ट्रैक वगैरह हो गया तो कैसा रहेगा मेरे लिए? नहीं नहीं, प्रॉब्लम है, फोरेक्स का प्रॉब्लम है, बट $10,000 के नीचे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। बट सिंस आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आई वुड एडवाइस कि ना करो तो बेहतर है। फालतू का जॉब वॉब पे क्यों लेना है यार रिस्क। तो नहीं, ना करोगे तो बेहतर है। बट फॉर जिसको जिसको भी अगर डाउट है, अगर $10,000 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो शायद कुछ नोटिस वोटिस आएगा, शायद प्रॉब्लम हो सकता है। बट इफ यू आर ट्रेडिंग बिलो $10,000 इट शुड बी फाइन। कोई P2P करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना उमर भाई? P2P मत करो भाई, P2P मत करो। अभी आजकल फिर बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं उसके चक्कर में। फिर कौन सा करें उसमें, अगर करना है तो? अगर करना है तो मतलब आपको फिर वो डीलर ही ढूंढना पड़ेगा, कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा जो आपको यूएसडीटी देगा कैश लेके। ओ, तब तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बाइनेंस में तो P2P करते हैं हम लोग। करेक्ट करेक्ट, बट P2P आई एम श्योर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, P2P में अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं वो लोग। थैंक यू उमर भाई। एंड एक चीज मैं बोलूंगा कि आपका जितने भी यूट्यूब में मैं देखता हूँ, सबसे जेन्युइन जर्नी आपका लगता है, और मैं आपका रिपीटेड वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब में कि कब आपने 800 रुपए से लेके इतना अचीव किया। मेरे को 1-1.5 साल हो गया, बट स्टिल आई एम नॉट प्रॉफिटेबल, और बार बार मेरे को साइकोलॉजी का इशू आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू बिकम लाइक यू। थैंक यू। 100% ब्रो। थैंक यू। थैंक ऑल द बेस्ट ब्रो। यस सायन, आई होप आई प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली। यस भैया। सो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और मैं ट्रेडिंग मतलब मार्केटिंग सभी में क्लास 10 से लाइट में क्लास 10। तो भैया एक्चुअली 1 साल से मैं आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल। लाइक मैंने $10 से लेके $20 से लेके 100-150 तक मैं ग्रो करा। बट जैसे मैं सोचता हूँ कि फंडेड चैलेंज लो तो उसमें सर मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है, यानी कैलकुलेशन में रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप प्लीज़ कुछ बताइए, मुझे उनके रूल्स थोड़े समझ नहीं आते, जैसे जो होते हैं ना कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मैक्स ब्रेक, सॉरी भूल रहा हूँ, पता नहीं कुछ टर्म्स होते हैं उनके, मैं मुझे समझ नहीं आती कुछ चीज़ें। तो आप किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो या फिर क्या, कैसे कर रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो एग्जैक्टली? एक्चुअली मैं राजा बैंक्स आपने सुने? हाँ। हाँ, तो राजा बैंक्स की वीडियोस देखता हूँ मैं, उसके कोर्सेज लीक्स वगैरह लीक्ड होती है कोई पेड कोर्सेज, तो उसके थ्रू मैंने सीखे ट्रेडिंग। ओके। और आपके भी जो स्टार्टिंग में जैसे बिगनर जब मैं था, तो आपकी वीडियोस थोड़ी बहुत देखी थी स्टार्टिंग में, आप पहले इंडियन मार्केट करते थे। मेरा तो लीड आप कोर्सेज नहीं मिला? सॉरी, मेरे लीड कोर्सेज नहीं मिले क्या? अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? तो उसके थ्रू फिर आप, मैंने आपकी पूरी जर्नी देखी, आप पहले इंडियन स्टॉक करते थे, फिर आपने, मुझे आपकी स्टोरी याद है, आप शायद स्कूल के आपके कोई टीचर आपको टिप्स देते थे। यस, हाँ। रोशन कोटियन, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। हाँ, कोई पता नहीं आपको टिप्स देते थे, आपने पता नहीं कुछ रेड ग्रीन होता था, आपने बहुत लंबी स्टोरी थी आपकी, मुझे याद नहीं, बट जितनी याद थी अब बताई मैंने आपको। तो बस मुझे एक्चुअली कोई फंडिंग अकाउंट्स में उसी में दिक्कत हुई, फंडेड अकाउंट्स में, तो समझ हाँ, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता मेरे को अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आई वुड सजेस्ट बुक्स पढ़ो उसके बारे में, वीडियोस देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो। ऑब्वियसली अब मैं यहाँ पे सब फंडेड अकाउंट्स तो नहीं समझा पाऊंगा पूरा डिटेल में, बट आई वुड सजेस्ट देन एजुकेट योरसेल्फ मोर। अभी ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर जस्ट 10 तो टाइम इज ऑन योर साइड, तो फोकस ऑन लर्निंग। जितना लर्निंग पे फोकस हो सके उतना ज़्यादा लर्निंग करो। एंड जस्ट एक छोटा सा एडवाइस दूंगा मैं, मतलब आई डोंट नो हाउ मच विल अंडरस्टैंड, बट चाहे आप गॉड में बिलीव करो या ना करो, बट दिस एंटायर यूनिवर्स इट वर्क्स ऑन एनर्जीज। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो भी है, and इसके ऊपर मैंने बात की थी एक बार। इफ नाउ यू पुटिंग सो मच एफर्ट इनटू योर लर्निंग, यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, राइट? वो कैसे होगा? वो हार्ड वर्क से होगा, ऑनेस्टी से होगा, ट्रूथ के साथ होगा, डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ होगा, राइट? इफ यू आर putting leaked courses into your learning, सॉरी। if you are putting leaked courses into your learning, you are putting negative energy inside your learning part, ठीक है, which is not going to benefit। चाहे आप दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर का लीड कोर्स ले लो, नहीं कर पाओगे। मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, नहीं कर पाओगे। हाँ, मेंटोर एक अलग बात होती है सर, लेकिन अब आप बताओ, जहाँ पे $50,000 वो लोग पता नहीं शायद इतने चार्ज करते हैं, तो
एज एन इंडियन स्टूडेंट मैं क्लास 12 में कितने मेरे पड़ेंगे, हार्डली 3-4 हजार की सेविंग्स होती होगी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू कि ऑब्वियसली यार इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, हम्म, बट अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत करो, सिंपल सी बात है। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, लाइक आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मतलब मेरे दिमाग में तो यार कभी ये थॉट आया ही नहीं कि मैं कभी किसी का लीक्ड कोर्स लूं। मैं नहीं कर सकता था, मैं भी फ्री में आपके था, जैसे ही शुरू जैसे किया आई था। डेंट पेड, वो फ्री में था। क्या? आई डेंट पेड फॉर द कोर्सेज, वो फ्री में था। आई नो, बट लीक था ना। हाँ लीक था। या तो मेरे दिमाग में तो कभी थॉट ही नहीं आया था पूरे जर्नी में कि लेट मी लीक यूज समबडीज लीक्ड कोर्स। आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे जो जो मिल रहा है मैं यूज करूंगा, फ्री इंफॉर्मेशन, आई यूज इट, आई ट्रेड एंड आई लर्न फ्रॉम दैट। एंड सेम माइंडसेट, so there are a lot of people who wear fake watches, fake shoes, fake wallets and all of that, सब बनता है ना कॉपी। हाँ सेम माइंडसेट, if let's say if you're purchasing let's say a fake Louis Vuitton का वॉलेट, फेक लुई विटॉन का वॉलेट आप खरीद रहे हो, ओके, लेट्स से 1,000 रुपए में, इट्स नॉट अबाउट द वॉलेट, इट्स अबाउट द पर्सन दैट यू बिकम हु कैन अफोर्ड एन ओरिजिनल लुई विटॉन वॉलेट। एंड अगर आप नकली लुई विटॉन का वॉलेट खरीद लोगे ना, यू विल नेवर एबल टू पुश टू दैट पर्टिकुलर लेवल, बिकॉज आपका माइंड तो ये बोलेगा कि भाई वॉलेट तो अचीव कर लिया, वॉलेट तो आ गया, तो वाई शुड आई वर्क हार्ड इनफ टू अचीव द ओरिजिनल लुई विटॉन वाला वॉलेट। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, व्हेन यू एक्चुअली गेट दैट लुई विटॉन का ओरिजिनल वॉलेट, आप उसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर है बट लॉन्ग टर्म बहुत पेन है भाई। तो दैट दिस जस्ट अ स्मॉल सजेशन फ्रॉम माय साइड। इन द एंड तो यार आपकी लाइफ है, यू विल डू व्हाटएवर यू वांट, बट आई वुड सजेस्ट, दिस इज जस्ट माय हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, डोंट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी इनटू योर लाइफ, इन चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, गलत काम मत करो। डोंट मेक किसी का कुछ नहीं होने वाला यार, मतलब आप भी कोई महल नहीं खड़ा करने वाले हो किसी के लीड कोर्सेज से, एंड सामने वाले का भी कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। बट व्हाट्स रियली गोइंग टू हैपन इज यू गोइंग टू मेस अप योर ओन जर्नी एंड योर ओन मेंटालिटी। एंड एक बार कर लिया ना ये सब, तो उसके बाद आदत बन जाती है, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। दैट्स जस्ट माय स्मॉल सजेशन ब्रो, अदरवाइज आई विश यू द बेस्ट। ओके, वन लास्ट पर्सन, यश भाई आपसे बात की हुई है मैंने, आई एम रियली सॉरी, आई विल हैव टू गिव समबडी एल्स अ चांस। यस अथर्वा। सर वो थोड़ा है ना, सेल्फ डाउट होता है कि पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। हम 1 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। हम्म मैंने प्रॉप फर्म के अकाउंट्स लिए, प्रॉप फर्म से फंडिंग लिया, और खुद के भी अकाउंट्स ब्लॉक किए। मैंने खुद के लगभग 4 अकाउंट ब्लॉक किए, हम्म और फंडेड के 3 अकाउंट मैंने ब्लॉक किए। फंडिंग का मैंने माई फॉरेक्स फंड करके था, उसका मैंने लिया, 3 अकाउंट ब्लॉक किए। उसके बाद चौथा अकाउंट लिया, तो हम्म वो बैन हो गया इंडिया के अंदर, मतलब वो कंपनी बैन हो गई, करप्ट हो गई। तो अभी हाँ राइट। चौथा मैंने अकाउंट लिया, द 5%। हम्म तो वो उस अकाउंट के अंदर मैंने सितंबर एंड में लिया। मैंने अक्टूबर और नवंबर ट्रेड किया। मैंने अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी गलतियां की, पैसा तोड़ा, पैसा बना है। लेकिन नवंबर में मैंने ऐसा कुछ मतलब मैं नवंबर में एक्चुअल में ब्रेक इवन या फिर प्रॉफिटेबल पेज में आया, जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा भी पैसा बनाने लगा। हम्म अभी भी मैं सेम दिसंबर में मैंने कुछ गलतियां की जिसमें मैंने पैसा तोड़ा। तो हम्म मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो पैसा मेरा टूट रहा है मैं वो तोड़ू ना। हम्म मतलब लॉसेस हो रहे, बैड लॉसेस हो रहे, हम्म गुड लॉसेस कम हो रहे और बैड लॉसेस ज्यादा हो रहे। पैसा बन रहा है लेकिन टूट भी रहा है। हम्म। तो सो ऐसा अथर्वा, सेल्फ डाउट होता है। हाँ, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आई थिंक सर आपने लेट ज्वाइन किया क्या वेबिनार? हाँ, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट कनेक्शन था, अच्छा, इशू था। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी फिर से, मैंने इसके ऊपर बात किया हुआ डिटेल में कि लॉस, बेसिकली लॉस को कैसे एड्रेस करना है, लॉस हो रहा है तो क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में, एंड सेल्फ डाउट को कैसे हैंडल करना है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। बट जहाँ तक ये बात है कि पैसा बनता है नहीं बनता है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। अगर पैसा नहीं बनता तो किसी का नहीं बनता, और अगर बन रहा है, एक इंसान का बन रहा है, इसका मतलब अब सबका बन सकता है। दैट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो अगर एक इंसान है आपके सामने, एक भी ऐसा इंसान है जो जेन्युइनली पैसा कमा रहा है ट्रेडिंग से, दैट मीन्स आप भी कमा सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई ही नहीं कमा रहा है, एक इंसान भी नहीं है, तो फिर देन थॉट आना वैलिड है कि भाई कोई नहीं कमा रहा है, बनेगा भी नहीं बनेगा, राइट? तो दैट्स ऑल। या ऐसे बाकी सब जो जो भी सारे आपके क्वेश्चंस थे अथर्वा भाई, आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दैट वेबिनार में। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है गाइस, आई थिंक विल कॉल इट अ डे।
And one last request before we wrap up. One last request would be, I would really appreciate if you guys can take out 2 minutes of your time and give feedbacks in terms of how the webinar was and if it was helpful for you or not. This is one. Second thing, I would be really interested to see कि जब आप लोग apply करोगे जो चीज मैंने बताई है, the quantitative thing, the law of distribution, जब आप वो apply करोगे उसके बाद आपको क्या results आए, I would love to know that as well. But obviously वो थोड़ा time बाद आने वाला है. But as of now, I would just request guys कि if you can take out 2 minutes of your time and share your feedback, I would really appreciate that. Thank you so much guys for taking out time. Have a good day ahead and I hope I helped you out. Thank you so much. Bye bye.